The question is, the directive principles of state policy are often criticized for lacking legal obligations and being seen as mere idealistic statements or political manifestos without significant constitutional importance. Introducing Educamy's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect: 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. And you have to discuss the answer in 250 words. So basically this is a 15 marker question. And if you'll see from which part of the syllabus this question is asked, so basically if you'll see the syllabus of general studies 2, you will find topics like Indian Constitution, historical underpinnings, evolutions, features, amendments, significant provisions, and basic structure. Now DPSP is basically a significant provision that is present in the part 4 of the Indian Constitution. So this is very important, or it is a very significant provision. That's why you can expect such questions in UPSC also. Now if you'll categorize the difficulty of this question, so this is a L2 level question because you have already read a lot of things about DPSP and what legal obligations that it is lacking, or how you are going to balance between directive principles and fundamental rights. You have read all these things while preparing for prelims. So you have information to write a very good answer for this question, but the main requirement is to frame all those information in a very comprehensive manner. And we will do all those things because we basically give you an outline about the model answer. Actual answer is going to be written by you and you have to submit that answer in our portal. Now let's start. The first thing that we do is introduce the question to the examiner. Basically, when a question is asked to you, the first thing that the examiner seeks is that you have understood the requirement of the question, and you have to clarify this in the introduction part in, you may say, 25 to 30 words. Keep in mind the word limit, the time limit. I am again repeating the same thing because आपको पता है mains is the main part of this examination, और mains आप तभी qualify कर सकते हैं when you have understood the time limit and the word limit. Now this question is asked under 250 words limit. This is a 15 marker question. So this is going to be a comprehensive question, but the time that you can spend on this question, max time that you can spend on this question is actually only 10 minutes. So keep in mind the time limit. Time limit को बहुत ध्यान में रखिए. DPSP के बारे में आप बहुत सारा चीज जानते होंगे, लेकिन उसको 10 मिनट के अंदर लिखना ही जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कि DPSP के बारे में आप क्या जानते हैं. तो आप बता सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर इन पार्ट 4. किस पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको बताना पड़ेगा कि ये किस पार्ट में है. आप बोल सकते हैं कि पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट वेयर द गवर्नमेंट वर्क्स टुवर्ड द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजंस. आप कुछ और भी बता सकते हैं DPSP के द्वारा कि DPSP ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. वी ऑलरेडी नो कि डिफरेंट जो पार्ट्स हैं DPSP के, डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं, वो हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन सोशलिज्म से. आप बोल सकते हैं जो है यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि कुछ जैसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आप कुछ एक दो और कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आप लिख सकते हैं. और इसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड सोशल, इकोनॉमिक, जस्टिस, लीगल, एनवायरमेंट, प्रोटेक्शन, मॉन्यूमेंट्स. कुछ भी आप एक ओवरव्यू दे दीजिए अबाउट DPSP. बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, सारे आर्टिकल्स के बारे में आप इंट्रोडक्शन में ही नहीं बताने लग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आगे हमें चल के यूज करना ही है. तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कि किस पार्ट में है, और इसका जो है इसको हमने बहुत ज्यादा सोर्सेज से जो है इस पे इंस्पिरेशन लिया है, और इसमें ब्रॉडली वी कैटेगराइज, जैसे आपने देखा होगा कि गांधीयन सोशलिज्म पे बेस्ड है, कुछ इंटेलेक्चुअल DPSPs हैं, एंड कुछ जो है जिसमें हिंट ऑफ सोशलिज्म है. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द क्वेश्चन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द बॉडी. और बॉडी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करेंगे. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग लीगल ऑब्लिगेशंस एंड बीइंग सीन एज मेयर आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट्स और पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस विदाउट सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस. नाउ इस सबसे पहले वी कैन राइट अ स्मॉल सेक्शन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ DPSP. आपने बता दिया कि DPSP किस सेक्शन में है और इसमें क्या क्या होते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, इसके पर्पस क्या था कि DPSP को कॉन्स्टिट्यूशन में डालना था. कुछ मतलब इसमें आप बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस मत लिखिए, लेकिन आप इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं. इस हेड के अंदर यू कैन इंक्लूड 5 to 6 पॉइंट्स. जैसे आपका फर्स्ट है दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. आपको पता है वी ऑलरेडी नो कि द पॉलिटिकल जस्टिस इज इंश्योर्ड बाय द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स क्या करता है आपका कि आपको पॉलिटिकल जस्टिस, जैसे आपको राइट टू इक्वालिटी,
इस तरह की चीज जो होते हैं जो जिसमें आपको पॉलिटिकल बोल सकते हैं आपका वेलफेयर हो और पॉलिटिकल लिबर्टी की बात हो, दैट कम्स फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। लेकिन जब सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है तो वहां पर फंडामेंटल राइट जो है वो साइलेंट हो जाता है और वहां पर डीपीएसपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप स्टार्टिंग करेंगे आर्टिकल 32, आर्टिकल 39 ये सब आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि आपको जो है वेल्थ का एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, फिर आपको जो है सारे रिसोर्सेज जो है प्रोडक्शन का उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो एक तरह से दिस इज अ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की इंश्योर किया जा रहा है वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस। अगेन सेकंड सेक्शन है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आपको नहीं पता कि जैसे वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, वैसे सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होता है, मिनिमम वेजेस होने चाहिए, इन केस ऑफ अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट होना चाहिए, तो इस तरह की भी बातें होती। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या, थर्ड इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर आप स्पेसिफिक आर्टिकल्स को कोट करेंगे, जैसे आर्टिकल 46 क्या है, डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस है हमारे सोसाइटी में उनको भी लेकर चलना है, ये क्लियरली डिफाइंड है हमारे डीपीएसपी में। आर्टिकल 46 को अगर आप कोट करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको इसमें फायदा मिले। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की वेलफेयर स्टेट का है कि हमें आर्टिकल 47 में देखिए लिखा हुआ है स्टेट दैट स्टेट शैल रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ आफ्टर इंश्योरिंग बेसिक लाइवलीहुड फैसिलिटीज, जैसे हमने देखा कि मिनिमम वेजेस एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद स्टेट को हमेशा स्ट्राइव करते रहना है वेलफेयर स्टेट की तरफ जाने के लिए। अब वेलफेयर स्टेट में क्या होता है कि आपको लेवल ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा रेज करना पड़ेगा। जो हम लोग जो आपका जो पीडीएस सिस्टम है उसमें जो है गवर्नमेंट आप देखते हैं डेली जो है या फिर उस पर बहुत सारा पॉलिसी डिस्कशंस होता है कि इसमें न्यूट्रिशन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड फूड सिक्योरिटी बट वी हैव नॉट रिसीव्ड द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो अब बात हो रहा है कि हमें चावल दाल के अलावा कुछ न्यूट्रिशियस ईटिंग आइटम्स भी देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल सोसाइटी का जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इंक्रीज हो। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ हो। तो इस तरह की चीज जो है वो स्टेट को स्ट्राइव करना है और ये डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी में डायरेक्टली स्टेटेड है। इसके बाद हार्मोनाइजिंग फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स से बहुत सारा राइट्स हमें मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें एक तरह से आप बोल सकते हैं वॉइड क्रिएट हो जाता है और इस वॉइड को फिल कौन करता है, डीपीएस। आपको पता है आर्टिकल 45 जो है वो गारंटी करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको पता है कि अंडर आर्टिकल 21A विच इज अंडर फंडामेंटल राइट्स, द गवर्नमेंट नीड्स टू गारंटी द एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years ऑफ एज। मतलब अगर आपका बच्चा 6 से 14 साल के एज का है तो उसे गवर्नमेंट जो है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी एंड दिस इज गिवन अंडर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A। लेकिन आपको पता है कि 6 साल से पहले जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होता है दिस इज टेकन केयर बाय द डीपीएस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा वो फिल किया जाता है डीपीएस। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं, इसके अंदर कंटेंट आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। यू कैन डायरेक्टली राइट की फॉर एग्जांपल आर्टिकल 45 गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6 years। आप बता सकते हैं कि दिस जो है ये टेक केयर करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो ये आपका सफाइस हो गया। ऑब्वियसली हम लोग जो है थोड़े डिटेल में कंटेंट देते हैं कि आपको ज्यादा कंटेंट आपके दिमाग में रहे। इवन अगर इसका आपको 50% भी इस कंटेंट का अगर आपके दिमाग में रहेगा तो यू कैन राइट अ वेरी गुड आंसर। तो यहां पर आपको जो अपना आंसर लिखना है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर ऑन योर ओन, वहां पर आप बहुत सारा यहां पर कर्टेल्स कर सकते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस को और आप शॉर्ट सेंटेंसेस प्रिसाइज आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं और इवन एग्जांपल्स भी यूज कर। इसके बाद डीपीएसपी का क्या फायदा है, लॉन्ग टर्म विजन। देखिए डीपीएसपी जो है बहुत सारे ऐसे विजन्स को भी रखता है जिसमें जो लॉन्ग टर्म गोल्स हो। आप देखेंगे कि जो वेलफेयर स्टेट का ही जो कंसेप्ट है दैट इज अ लॉन्ग टर्म कंसेप्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें जो है आपको क्या है मतलब कि जो वेलफेयर स्टेट क्या होता है जहां पर प्रॉपर सोसाइटी का ग्रोथ हो, एजुकेशन हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो। तो इन सब को रीच करने के लिए डीपीएसपी में डिफरेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि एक तरह से हमें फ्यूचर के लिए भी गाइड करता है और लॉन्ग टर्म गोल सेट करता है गवर्नमेंट। जैसा ऐसा नहीं है कि आज के दिन आपको क्या करना है, आगे चल के हमारा सोसाइटी कैसा होना चाहिए, ये भी डीपीएसपी आपको बताता है आपके प्रोविजंस। तो ये आपने इंपॉर्टेंस बता दिया। यू कैन डेडिकेट 2 to 2.5 मिनट्स इन दिस सेक्शन ऑफ द आंसर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर ऑफन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैकिंग लीगल ऑब्लिगेशंस एंड बीइंग सीन एज मेयर आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट और पॉलिटिकल मैनिफेस्टोस। अब देखिए इस चीज को हमें बताना है कि आपको पता है कि डीपीएसपी का जो है दिस इज नॉट जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल क्या है, आपको पता है फंडामेंटल राइट, इसको अगर आप कंट्रास्ट में पढ़ेंगे विद फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में दिया हुआ है, तो व्हेन अ फंडामेंटल राइट इज नॉट इंप्लीमेंटेड और इट इज बीइंग वायलेटेड बाय स्टेट, आपको अंडर आर्टिकल 32 यू कैन मूव सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है कैन इशू जो है अंडर इट्स रिट्स जुरिसडिक्शन डिफरेंट रिट्स जो है हेबियस कॉर्पस, सर्चुआरी, बहुत सारे जो रिट्स है उसको इशू किया जा सकता है। तो एक तरह से आर्टिकल 32 इंश्योर करता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसी भी हाल में
इन्फोर्स हो ना। यही दिक्कत जो है वो डीपीएसपी में नहीं। तो डेफिनेटली हम लोग इसके क्रिटिसिज्म में यही डिस्कस करते हैं कि डीपीएसपी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है। तो सबसे पहला है नॉन जस्टिसिएबिलिटी, इसको ऐसा नहीं है कि इफ इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड, जो आर्टिकल 39 में दिया हुआ है, आर्टिकल 42 में दिया हुआ है, आर्टिकल 43 में दिया हुआ है, तो यू कैन मूव टू द कोर्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है आप केस कर दें और आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए अंडर रिट जुरिडिक्शन की आप जो है इस देख रहे हैं कि डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप इस पर कुछ जो है गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर्स दें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दिस इज यही एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है और इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये क्यों है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसिएबल क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। इसके बाद देखेंगे तो लैग ऑफ लीगल सैक्शंस, आगे वही चीजें आप बता सकते हैं कि अगर इन केस अगर कुछ नहीं, अगर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती है, इवन दी मोस्ट क्रूशियल डीपीएसपी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी हैं, जैसे मिनिमम वेजेस हैं या इस तरह की चीजें जो हैं, अगर इन केस अगर एक्ट बना हुआ है उसके अंदर जो प्रोविजंस है उसके अंदर आप लीगल कोर्स ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आप लीगल सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है द मेजर रीजन इज द लैक ऑफ रिसोर्स। ये गवर्नमेंट हमेशा क्लेम कर सकते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो भी डीपीएसपी में दिया हुआ है वो उसको इंप्लीमेंट कर पाए। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है दैट इज कंफ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि फ्रॉम 1951 जो केसेस चले डिफरेंट, जो है शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, फिर आपका केशवानंद भारती केस, तो यहां पर जितने भी केसेस थे बेसिकली दीज वर दी केसेस वर वेयर जो डिस्कशन हुआ था किसका, डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट। कुछ ऐसे प्रोविजंस थे डीपीएसपी में जिसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू वायलेट अ फ्यू फंडामेंटल राइट्स, जैसे आर्टिकल 14 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 19 में। तो इस तरह की चीजों को क्या हुआ कि ये कंफ्लिक्ट में आया, तो इसके वजह से ये हमेशा एक कंफ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि फंडामेंटल राइट्स में जो इंश्योर किया जाता है डीपीएसपी में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि उसके कंट्रास्ट में आ जाते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट विल, ऑब्वियसली हमने देखा इस सिंस देयर आर नो लीगल सैंक्शंस, तो यहां पर क्या है गवर्नमेंट के विल पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा है, वो गवर्नमेंट वो मतलब एक तरह से सिटीजंस के लिए कितना काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना आपका डीपीएसपी जो है वो इंप्लीमेंट हो। इसके बाद बहुत बड़ा एक जो आप बोल सकते हैं क्रिटिसिज्म है दैट इज वेग एंड एम्बिगुअस लैंग्वेज। आपको पता है आर्टिकल्स में जो दिए हुए हैं डीपीएसपी वो सिर्फ एक लाइन दिया हुआ है और वहां पर आपको जो है बहुत डिटेल में ये नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली दिस इज डन थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के थ्रू किया जा सकता है जिसमें डिटेल्स इंट्रोड्यूस किया सकता है, लेकिन ऐसे एज इन जनरल जो डीपीएसपीस दिए हुए हैं दोज आर वेग एंड एम्बिगुअस लैंग्वेज। तो यहां पर आपने कुछ क्रिटिसिज्म जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डील कर दिया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, देखिए आपको ये डेफिनेटली हमने इसमें डिस्कस कर लिया यहां पर कि यहां पर इसको सिर्फ क्या है कि आपको मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको डीपीएसपी गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब लेकिन आपको यहां पर एंड नहीं करना है आंसर, यहीं पर एक दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स यहीं पर एंड करके निकल जाते हैं कि आपके क्वेश्चन में जो है आपसे ये पूछा गया है कि क्या है कि इट लैक द लीगल ऑब्लिगेशन, आपने वो पार्ट बता दिया, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हाउ दिस कैन बी इंप्रूव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पॉजिटिव नोट पर किसी भी आंसर को एंड करें। तो आपको एक वे फॉरवर्ड जिसमें एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स इफ द क्वेश्चन इज 15 मार्कर्स और इफ द क्वेश्चन इज 10 मार्कर है तो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको वे फॉरवर्ड में बताना पड़ेगा एंड देन कंक्लूड। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेच 1 एक्स्ट्रा मार्क्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर क्वेश्चन में। अगर आप एक एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल स्कोर पे बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो आपने देखा कि क्रिटिसिज्म है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, तो यहाँ पर सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि एक जैसे क्रिटिसिज्म था वेग एंड एम्बिगुअस लैंग्वेज, क्लियर कट नहीं है कि गवर्नमेंट को क्या किस लेवल ऑफ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना है सिटीजंस को। तो ये किसके थ्रू किया जा सकता है, आपने गवर्नेंस पढ़ा है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है, सिटीजन चार्टर इज अ बेसिक मिनिमम यू मे से स्टेटमेंट दैट इज इशूड बाय द एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि इतना लेवल ऑफ सर्विस दे विल इंश्योर फ्रॉम देयर साइड, मतलब इससे नीचे वो नहीं देंगे और इतना लेवल दे विल इंश्योर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल इंश्योर टू द सिटीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन चार्टर का अगर सारा डिपार्टमेंट जो है चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, अगर उसका इंप्लीमेंटेशन करने लग जाए तो बहुत सारा डीपीएसपी जो है वो अपने आप इंप्लीमेंट होने लगे। इसके बाद कैसे करना है, देखिए बिकॉज इट लैक्स द लीगल ऑब्लिगेशन, तो यू कैन डू सोशल ऑडिट। अगर आप सोशल ऑडिट प्रमोट करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सोशल ऑडिट को काफी ज्यादा तरजीह दिया जाता है। अगर सोशल ऑडिट को तरजीह देने लग दिया गया तो ये इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर आपका लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर आप कोर्ट मूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर सोसाइटी जो है वो अपने लेवल पर ऑडिट करने लगे कि ये गवर्नमेंट जो है डीपीएसपी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, तो भी गवर्नमेंट को वो करना पड़ेगा और एक तरह से आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन। इसके बाद क्या आपको करना है, इंप्रूव वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटी। देखिए ये सब पॉइंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेगा और जब तक आप सारा चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप ये सब पॉइंट्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको पता है कि इन आवर कंट्री वी हैव अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर
कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। तो इन केस अगर पार्लियामेंट अच्छे से फंक्शन करता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज अगर अच्छे से स्क्रूटनी करती है कि गवर्नमेंट क्या डीपीएसपी फॉलो कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, तो भी उस केस में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सकता है। द फोर्थ पॉइंट आपको पता है, हमने बोला कि सबसे मेजर इशू बिहाइंड लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी क्या है, इज दी लैक ऑफ फंड्स। आपको पता है गवर्नमेंट के पास एनफ फंड्स नहीं है, टैक्स रेवेन्यू इतना नहीं है कि जितने भी डीपीएसपी में चीज दिए हुए वो इंप्लीमेंट कर पाए। तो यहां पर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए पीपीपी मॉडल। आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर आप लाएंगे डिफरेंट, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन में, तो वहां पर क्या होगा कि फंड्स आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आने से वैसे क्या होगा कि जो भी डीपीएसपी में दिया हुआ है कि बेयर मिनिमम सैलरी होना चाहिए, आपको मतलब डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस होना चाहिए, तो ये जो है ये इंप्रूव करेगा। तो इसी कारण आप अगर ये सब पॉइंट्स लिखते हैं, ये बहुत इनोवेटिव पॉइंट्स है और डेफिनेटली एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप सारे चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये सब अगर आप इंश्योर करते हैं तो आपका डीपीएसपी जो है उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इवन विदाउट लीगल ऑब्लिगेशन। लास्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज टू कंक्लूड। आप बता दिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कितने इंपॉर्टेंट है। आप ये भी लिख सकते हैं कि दी हार्मनी बिटवीन द डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल राइट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इस तरह के लाइंस को आप देके बता सकते हैं कि हाउ डीपीएसपी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना मेजर प्रोविजंस है ये। और इसके बारे में आप एक दो लाइन ये भी लिख सकते हैं कि कैसे हमें जो है गवर्नमेंट को जो है वो वर्क करना चाहिए टुवर्ड्स इंश्योरिंग सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर। तो आपने इसको एंड कर दिया, आपने कंक्लूड कर दिया, आपका एक होलिस्टिक आंसर बन गया। इसी तरह से क्वेश्चंस आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे जहां पर वी विल डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वी विल गिव यू अबाउट द मॉडल आउटलाइन अबाउट द मॉडल आंसर, क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअल आंसर आपको लिखना है। डिस्पाइट कि मैं आपको कितना अच्छा आंसर यहां पे बता दूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उस 10 मिनट्स में अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रहे, आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो इसी हैबिट को डेवलप करिए, एवरी डे इंप्रूव करिए। इस सीरीज का यही मतलब है कि आप डेली इंप्रूव करें अपना, और आप डेफिनेटली आप देखेंगे आफ्टर 2-3 मंथ्स आपका आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।